So, good morning, students. I hope so you all are fine. And today we will be starting with a new topic, that is a service marketing. तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जो नीचे दिए हुए बेल बटन है उसमें ऑल में जाके आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियोस जो भी मैं अपडेट करूँगा वो आप तक पहुँच सके। तो विदाउट टाइम गंवाएं शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ सर्विस मार्केटिंग। ओके, तो सर्विस मार्केटिंग इज़ व्हाट? व्हेन आई से सर्विस मार्केटिंग अपने आप में दो टॉपिक है, दो वर्ड्स हैं। आप देख सकते हो उसमें सर्विस है और एक मार्केटिंग है। तो what exactly is a service? So when I say that is service, something which is a kind of a, you can say, intangible goods कह सकते हैं, ठीक है ना। तो intangible goods, I hope so आप सभी को पता है what is an intangible goods, यानी कि it is a kind of an asset which cannot be seen as well as touched. Okay, अब इसमें भी एक marketing होती है। So marketing is what? Marketing is relating to right from the production of the knowledge to the promotion and the distribution of a knowledge. So what exactly is service marketing? So now we'll come to the point that service marketing is a concept which focuses on business of non-physical intangible goods. ठीक है, तो service marketing is done for what? तो service marketing जो है it is always being done for the company's benefit. Okay, although it is some kind of an asset जिसको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, but still it is considered to be an asset because इसके बगैर, इसके बिना आपका कोई भी जो कंपनी का जो काम है या बिजनेस का जो काम है या एनी पर्टिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है ना, वो नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई सर्विस मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। Okay, now the thing is that is these services, they are mostly done by whom? These are being done mostly done by the people, okay, process, and they cannot be kept by a customer. So अगर आप देखें सर्विस मार्केटिंग में बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ जाते हैं, जैसे कि मान लो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाता है, हॉस्पिटैलिटी आ जाता है यानी कि होटल इंडस्ट्रीज, फिर टूरिज्म आ जाते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज आ जाते हैं। Now, why these services-oriented business are there? The only and only reason is what? To promote their business, to drive their business. Okay. So let's come to the next point, that is the features of service marketing. तो ये जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया, इसमें सारे पॉइंट्स ऑलरेडी है कि फीचर्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग क्या है। Okay, so basically there are different features of a service marketing. One is it gives an intangible benefits. Then it gives no ownership is there. फिर उसके बाद ये है कि inseparability है, variability है। Service marketing जो है it's a perishable kind of a goods and services which is being offered. Then we have the people investment, right? So let's discuss one by one every point over here. Okay. So first, as I was telling you about the features of the service marketing, now features of service marketing में सबसे पहला point हम देखेंगे that is intangible. Now what's an intangible? The reason is that is intangible is something which you can't see and touch. Okay, you cannot see it also as well as you cannot touch it also, but still this is a kind of an asset. अगर ये नहीं होगा तो आगे हमारा जो भी प्रोसेस है वो चलना मुश्किल है, ठीक है। तो इसको एसेट इसीलिए कहा जाता है बिकॉज एसेट इज समथिंग विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज। एसेट इज समथिंग विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अगर मैं कहूँ मशीनरीज, तो मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट है। व्हाई? द रीजन इज दैट इज ये मशीन्स के थ्रू से हम फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही सर्विसेज अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारा फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बैंकिंग, तो बैंकिंग नहीं रहेगा तो डेफिनेटली
बिजनेस कोई भी अपना काम नहीं कर पाएगा, अपना काम जो है ढंग से नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, दैट इज द फीचर ऑफ सर्विस मार्केटिंग इज व्हाट, दैट इज इट्स intangible. Okay, second we have that is the no ownership. Okay, now services basically it cannot be owned, but it can only be experienced. Okay, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्विसेज मुझे दिया है, डॉक्टर ने कोई सर्विसेज दिया, ओके, डॉक्टर ने सर्विसेज दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस सर्विसेज को ओन कर लूँगा, ओके, यानी मैंने उसको पैसे देके मैं वही सर्विसेज को मैं खरीद के रख दूंगा एंड बाद में उसको मैं यूज करूंगा जब मेरी रिक्वायरमेंट हो, ओके। सो द थिंग इज दैट इज एनी सर्विसेज दे कैन नॉट बी ओन्ड, बट इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, ओके। नेक्स्ट वी हैव दैट इज इनसेपरेबिलिटी, ओके। नाउ इनसेपरेबिलिटी का मतलब ये है कि सर्विसेज जो है, किसी भी सर्विसेज को हम क्रिएट कर सकते हैं, बट the point of the time is what it is, it should be used at the same time or it should be used at the same moment. You can't say that is ये services मैंने, let's say ये services मैंने ली है और उसको मैं कहीं पे सेव करके रखूँगा, okay, like a cash or like some other kind of an assets. So the services are created, okay, services तो create होते हैं, but it should be used at the same time. Next we have that is variability. Okay, now variability is what? When I say variability, तो variability का मतलब ये हो जाता है कि सर्विसेज में वेरी इन नेचर, ओके, हर एक सर्विसेज अपने आप में अलग होती हैं, ओके। मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाऊँ, वो डॉक्टर मेरे को सर्विसेज देगा, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाऊँगा तो वो डॉक्टर भी मुझे सेम सर्विसेज देगा, बट उसके सर्विसेज और इसके सर्विस में डिफरेंस रहेगा, ओके। सिमिलरली फॉर every professionals, okay, similarly for every industries which is offering services, okay. If I say, let's say that is Taj Hotel is there, okay, and a normal hotel is there, okay, the services which the Taj Hotel is going to offer to me up, that will be different as compared to the local hotel from whichever services I am taking, okay, or I am using it, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट है पेरिशेबिलिटी। सो पेरिशेबिलिटी का मतलब ये है कि पेरिशेबल समथिंग इट गेट्स पेरिश्ड, ओके, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि वेजिटेबल्स है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा से 4-5 दिन तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर गया तो डेफिनेटली ये पेरिश हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आप रखोगे वेजिटेबल्स को तो वो सड़ जाएंगे घर में। तो सिमिलरली द थिंग इज दैट इज सर्विसेज जो है इट्स पेरिशेबल इन नेचर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेरिशेबल इन नेचर? दैट मीन्स you cannot store it somewhere, okay, you can use it, but the point of thing is over here that is it has to be used up at the same time. आप उसको बाद में रखने का ये नहीं कर सकते, जिम्मेदारी नहीं ले सकते, okay. Next we have that is people involvement, okay. Now when I say people involvement is what? That is, it is always, you know, it's always driven by people, okay. वो हमेशा जो है लोगों के साथ चलते हैं, ओके। अगर लोग नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली सर्विसेज भी होना हमारे लिए मुश्किल है, ओके। तो ये लोग जो है ये एम्प्लॉयज हैं आपके पास, एम्प्लॉयज आर ऑफरिंग यू द सर्विसेज एंड दिस सर्विसेज आर बीइंग अल्टीमेटली गिवन टू हूम? इज बीइंग गिवन टू द कस्टमर्स। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट इज देयर इज अ होल काइंड ऑफ अ पीपल इन्वॉल्व। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें मुझे आपको फीचर्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग के बारे में समझाना था, ठीक है ना। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो बेल बटन को प्लीज़ आप प्रेस कर दीजिए, उसमें ऑल बटन पे आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का अपडेट सीधा आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द अदर थिंग, फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्विस मार्केटिंग, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।